میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، ان کی حالت میں بتا نہیں سکتا تھا کہ جو ان کے اوپر بیتی ہے کہ ان کے سامنے میرے بچوں کے ساتھ سب لوگوں کی وہاں پہ جھوٹی شناخت پریڈیں ہوئی ہیں. آپ کو کسی بھی وقت وہ ایجنسیاں آئیں گی، وہ آپ کو لے جائیں گی. میں کہا کس مقصد کے لیے مجھے لے جائیں گی؟ کیا کیا میں نے؟ انہوں نے کہا آپ اس طرح کی بات نہ کریں، آپ میرے ساتھ چلیں. خاموشی سے سامنے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، آپ ان میں جا کے بیٹھیں. یونیفارم میں سارے وہ سارے یونیفارم میں تھے، کچھ جو ہے وہ سول کوڈ میں تھے. انہوں نے میری ویڈیو بنائی، بیان لیا، تو وہاں سے پھر ہمیں انہوں نے تھانہ گلبرگ شفٹ کر دیا. اور سب سے جو میرے لیے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس رات کو میرے بھائی اور سسٹر کی شادی تھی. میرا گھر جو ہے وہ لائٹنگ سے بھرا ہوا ہے. تو میں نے ان کو پوچھا میڈم آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، لہٰذا آپ مل گئے ہمیں. اتنا کہ فون بند ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا. میں مجبور تھا، آپ کی شناخت کرنی تھی میں نے. اور پورے علاقے کو پتا کہ میں کٹریا نون لے گیا ہوں. میرا بیٹی ایسے دور تک کوئی تعلق واسطہ کوئی بھی نہیں ہے، تعلق واسطہ بالکل بھی نہیں ہے. میں قرآن پاک پہ حلف رکھ کے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں. ATC پیش کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا، 14 روزہ ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا. لیکن گھر والوں سے ملاقات کوئی نہیں ہے. گھر والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے میں کہاں نہیں، کیونکہ نہ کسی سے بات کرنے دے رہے ہیں، نہ کسی سے ملاقات کرنے دے رہے ہیں. میں نے کہا کم از کم میرے گھر والوں کو اطلاع دے دیں کہ آپ کے بچے کو ہم نے اس کیس میں اٹھایا ہے. کم از کم ان کا کوئی ذہن تو بن جائے کہ پتہ لگے ہمارا بچہ ہے کدھر. والدہ کا تو بہت برا حال ہے. میری والدہ اتنا پریشان، رو کے برے حال میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس وقت کوئی بھی نہیں سن رہا تھا کیونکہ حالات ایسے تھے، کوئی بھی جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں لے رہا تھا. ایک ایسا شخص جس کا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، حمدہ شہباز کے ساتھ، آنریبل اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صدیقی صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، اگر اس بندے کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے میرے خیال سے 1 گھنٹے کے اندر اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. CDR نکلوا کے، CDR سے اگر آپ لوگ مطمئن نہیں ہو رہے، جو اس کی لوکیشن آ جاتی ہے، اگر لوکیشن سے بھی مطمئن نہیں ہو رہے تو پھر اس کو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی دل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل. ناظرین بات کریں گے پچھلے 2-2.5 سال میں جو ملک و قوم کے ساتھ ظلم و بربریت بڑھتی جا رہی تھی، اس کے حوالے سے ایک سٹوری میرے پاس موجود ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ظہور الامین صاحب، جن کا بنیادی تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور پچھلے 2 سال کے اندر ان کے ساتھ وہ ناورہ سلوک رکھا گیا جو کہ PTI والوں کے ساتھ رکھا گیا. حالانکہ ان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جن کے میرے خیال سے دکھانے سے SP بھی بندہ سلوٹ مارے کہ جی یہ آنریبل چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ ایک مریم نواز شریف صاحبہ کی فوٹو، یہ ظہور صاحب بیٹھے ہیں. اچھا، پھر یہ 2012 کا سیمینار ہے، یہ آنریبل چیف منسٹر ہیں اور یہ ان کے ساتھ ظہور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، پھر سر یہ ساتھ میں نوٹیفیکیشن ہے، نوٹیفیکیشن کے ساتھ اچھا پھر مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جب حمزہ شہباز صاحب ایکٹیو ہوئے تو پھر ان کے ساتھ کچھ پکچرز ہیں. یہ ایاز صادق اور حمزہ شہباز کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں سافٹ کاپیز بھی کیمرہ مین سے کہہ کے یا ایڈیٹر سے کہہ کے اس کے ساتھ لگواؤں گا. پھر یہ میرے خیال سے یہ جب سید توصیف شاہ کوئی وہاں سے کینڈیڈیٹ تھے تو ان کی سپورٹ کے لیے انہوں نے جلسے بھی کروائے اور لنگر بھی کھلائے، بریانیاں بھی کھلائی ہوں گی. اور یہ ملک خالد کھوکھر صاحب اور راؤن چودھری، اور یہ میرے خیال سے تب کا ہے جب رجیم چینج ہونے کے بعد راؤن چودھری صاحب نے نون لیگ کو جوائن کیا، اور اس وقت جب الیکشن ہوئے تھے میرے خیال سے یہ تب کی فوٹو، تب ان کی وہ پکچر لگی ہوئی ہے. اور پھر یہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے، اسٹائلو کمپنی کے اندر ایک کام کرتے رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے ہے. اور مختلف سرٹیفکیٹس ہیں جس میں جو یہ شو کرتے ہیں کہ ان کا سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس دن بھی یہ اپنی ڈیوٹی کر کے اپنے گھر سے واپس جا رہے تھے. جس جگہ پہ PTI والوں نے جلسہ دھرنا کیا یا لانگ مارچ نکالی اور وہ مختلف جگہوں پر موو کرتے ہوئے گئے، اس روٹ میں ان کا کوئی آنا جانا نہیں تھا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک ایسا شخص جس کا مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، حمدہ شہباز کے ساتھ، آنریبل اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صدیقی صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، اگر اس بندے کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو اس دن جس دن PTI کی ریلی جا رہی ہے، اس دن وہاں سے جو لوگ پراپرلی اپنی ڈیوٹیوں پہ جا رہے تھے یا آ رہے تھے، کوئی مزدور ہوگا، کوئی ریڑھی بان ہوگا، کوئی جوتے پالش کرنے والا پٹھان بیچارہ گھوم رہا ہوگا، کوئی فروٹ بیچنے والا ٹھیلے والا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. آئیے ان سے سنتے ہیں انہی کی زبانی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ظہور صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر سر. سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اچھا سر، یہ ماجرا کیا ہے، ذرا اپنے الفاظوں میں بیان فرمائیے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی بات رکھنے کا یہاں موقع دیا. ویلکم. تو میں یہ بات جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس 9 مئی واقعہ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ
इस बेगुनाह वाक़या से मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं। मैं अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ, वहाँ पे गुलबर्ग में कॉलेज रोड पे मैं वहाँ पे शूज़ ब्रांड है, प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो मेरी सुबह 9:45 से लेकर रात 11:45 तक की बायोमेट्रिक अटेंडेंस मेरे पास मौजूद है। और ये कंपनी की तरफ से एक लेटर भी मौजूद है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कंपनी की तरफ से मुझे कहा गया है कि ये बंदा इस टाइम से लेके इस टाइम तक ड्यूटी पर मौजूद था। मेरी वहाँ की CCTV वीडियो, ये मेरी वीडियो है सारा दिन काम करने की जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मौजूद है। उसके अलावा मुझे कंपनी की तरफ से बयान हल्फी भी दिया गया कि ये बंदा सारा दिन अपने काम पे मौजूद रहा। मेरा बिल्कुल भी 9 मई के साथ कोई लेना देना नहीं है, किसी किस्म का तल्लक वास्ता नहीं है। सर ये फिर आपको इन्वॉल्व कैसे किया गया? सर ये आप जो है वो इंतज़ामिया की कोताही हो सकती है, गलत फहमी की बिना पर जो है मेरा नाम इस फहरिस्त में आ गया। सर गलत फहमी क्या, आज इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, 1 घंटे के अंदर अगर किसी एक बंदा आपके पास आ गया और आपने उसको रखा हुआ है, मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर उसको वेरीफाई किया जा सकता है CDR निकलवा के। CDR से अगर आप लोग मुतमईन नहीं हो रहे, जो उसकी लोकेशन आ जाती है, अगर लोकेशन से भी मुतमईन नहीं हो रहे तो फिर उसके ऑफिस जाके जो आपके पास ये CCTV फुटेजेस है उसके ज़हूर भाई की, सारा दिन ये जब काम करे अपनी ड्यूटी पे, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अब ये तो नहीं है कि आप किसी जगह लॉन्ग मार्च के अंदर गए हैं और आपके ऑफिस के अंदर यूनिफॉर्म में आपकी जगह कोई और बंदा आके ड्यूटी कर रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी तो अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी। या आपका क्या ख्याल है कि आपकी अपनी जमात में से किसी बंदे ने आपका नाम दिया है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तो हमने ये सुना है कि जिनके ज़ाती इख्तलाफात थे उन्होंने मुतल्लिका थाने के SHOs को जाके कहा कि यार इस बंदे का भी नाम डालें, इस बंदे का भी नाम डालें। सर मेरा इख्तलाफ तो किसी बंदे के साथ नहीं था, तो ये समझ से बालातर है कि मेरा नाम जो है वो उसमें किसने डाला या कैसे आया। मैं तो इसको जो है वो इंतज़ामिया की कोताही या उनकी गलत फहमी की वजह से मैं ये कह सकता हूँ। आपको कब और कैसे उठाया? मैं सारा दिन ड्यूटी पे था, रात को जब मैं घर गया तो पीछे से वो मुझे लेने आ गए, उसी सेम डे सेम टाइम पे जब मैं जैसे घर पहुंचा वो मुझे लेने आ गए। और सबसे जो मेरे लिए तकलीफ दे बात ये थी कि उस रात को मेरे भाई और सिस्टर की शादी थी। अच्छा। मेरा घर जो है वो लाइटिंग से भरा हुआ है, हमारे ख़ानदान के लोग मेहंदी अटेंड करने के लिए आए हुए थे, तो मैं मुनासिब नहीं समझता ये मेहंदी वगैरह फंक्शन को, तो मैं अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। मैंने अपने घर वालों को कहा ठीक है आप अपने जो रस्में करनी है आप करें, हाँ। मैं जो है वो निकाह में शामिल हो जाऊँगा अगले दिन। तो मैं जैसे घर पहुँचा तो मेरी वालदा ने मुझे देगे वगैरह, खाने पके हुए थे, मेहमानों से घर भरा हुआ है, तो मेरी वालदा ने मुझे दाल चावल पके हुए थे जो मोस्टली होता है, तो वो मैंने वो खाए हैं। खा के तो मैं अपने कमरे तक पहुँचा हूँ तो मुझे कॉल आती है, अननोन नंबर से कॉल आती है, जी आप किधर हैं? मैं कहा मैडम आप कौन है? अच्छा, खतून थी। अच्छा। तो मैंने उनको पूछा मैडम आप कौन है? तो उन्होंने कहा जी हम आपको ढूंढ रहे हैं, लिहाजा आप मिल गए हमें। इतना कह के फ़ोन बंद होता है तो पुलिस आ जाती है। अच्छा। पुलिस आती है तो वो आके कहती है जी मेरा नाम लेती है, ज़हूर में इनको बुलाएं। तो मेरे वाला साहब जो है वो मुझे ऊपर से आवाज़ देते हैं कि बेटा नीचे आओ, नीचे पुलिस आई है। तो मैं बिला किसी झिझक के, किसी घबराहट के, किसी परेशानी के, क्योंकि ना मेरा वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, ना किसी से लेना ना देना, अल्लाह का बड़ा शुक्र है अपने इलाके में एक अच्छा असर रसूख है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे इलाके को पता है कि मैं कटरिया नून ले गया हूँ, मेरा PTI से दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता कोई भी नहीं है, तल्लुक वास्ता बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुरान पाक पे हलफ रख के भी ये बात कह सकता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि मेरा कोई PTI से तल्लुक वास्ता नहीं है। मुझे मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने जो है वो मेरा नाम पूछा और उन्होंने ID कार्ड मंगवाए। मैंने ID कार्ड दिया तो उन्होंने मुझे फ़ौरन जो है ना उन्होंने कहा जी आप मोअज़्ज़िज़ बंदे हैं तो हम मुनासिब नहीं समझते कि आपको हम यहाँ से हाथ घड़ी लगा के लेके जाएं, तो आप हमारे साथ खामोशी इख्तियार करें और हमारे साथ जाते रहें। अच्छा। मैंने उनसे वजह पूछी, मैं रुक गया, मैंने कहा मुझे वजह बता दें कम से कम मेरा कसूर क्या है। मेरे इस टाइम इलाका सारा देख रहा है, आप इतनी पुलिस आई है मुझे उठाने के लिए, मैंने किया क्या है, मेरा जुर्म क्या है, मुझे मेरा कसूर बताया जाए, मैं आपके लिए जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा आप इस तरह की बात ना करें, आप मेरे साथ चलें। खामोशी से सामने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, आप उनमें जाके बैठे। यूनिफॉर्म में थे सारे? वो सारे यूनिफॉर्म में थे, कुछ जो है वो सिविल कोड में थे। अच्छा। तो तकरीबन कोई 12-15 लोग थे वो। अच्छा। खैर
उन्होंने, मैं खामोशी से चलता रहा, मैंने उनको पूछा जनाब से, मैं कहा जनाब थोड़ा सा मुझे बता दें, मेरे घर फंक्शन है, वो सारे लोग परेशान हो गए हैं कि मैंने क्या ऐसा क्या जुर्म कर दिया, इतनी ज़्यादा पुलिस आ गई है, और मेरे घर में फंक्शन था, सारे ख़ानदान के लोग वहाँ इकट्ठे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जनाब एक थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दें कि मेरा कसूर क्या है, ताकि मुझे आपके साथ चलते हुए भी कोई महसूस हो कि मैं वाकई ये काम किया है, वो आपके लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कुछ नहीं भाई साहब की थोड़ी सी वो वेरिफिकेशन होनी है, फिर आप हम छोड़ देंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं इनके साथ चला गया, चलता गया, आगे गाड़ी में बैठा, फिर कुछ थोड़ा सा कोई आधा किलोमीटर आगे जाके उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली। अच्छा। उन्होंने मुझे कोई ब्लैक कलर की करोला गाड़ी उसमें बैठा दिया, वहाँ से बैठा के मुझे वो उन्होंने ब्लैक कलर का मास्क मेरे ऊपर चढ़ा दिया, मुझे नहीं पता वो कहाँ के लेके चले गए। खैर कोई आपके घर वाले पीछा नहीं कर रहे थे? सर वो पीछा कर रहे थे, उनको यही था कि ये कोई भी मसला होता है तो मुतलका थाने ही बंदा जाता है। वो हमारे जो मुतलका थाना लगता है, थाना वादत कॉलोनी, वो वहाँ पे चले गए ढूंढने के लिए। उनका जी बंदा यहाँ पे नहीं है। वो और ज़्यादा परेशान हो गए कि बंदा कहाँ चला गया हमारा। ठीक है, लोगों के महल्लेदारों के माइंड में नेगेटिव सवाल आना शुरू हो गए कि पता नहीं इसने क्या ऐसा काम कर दिया है। पता है कोई मामला ऐसा हो जाए तो फिर घर वाले भी परेशान हो गए कि मेरे बेटे, इनकी कोई ना किसी से लेना ना देना, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा किसी किस्म का नहीं है। अगर फिर आपको उठा के लेके गाड़ी चेंज कर ली, आगे कहाँ गए? आगे मुझे इन्होंने जाके छोड़ दिया। ये मुझे सुबह 4 बजे पता चला कि वो भी एक अंदर मेरे साहब मौजूद थे। कि मैंने पूछा मैं ये किस जगह मौजूद हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि ये थाना घड़ी शो है। अच्छा। कि किला गुजर सिंह जो कहते हैं, अच्छा, वहाँ मौजूद है। तो मैंने उन बंदे से पूछा जी, मैंने कहा जी मेरा कसूर मुझे तो बता दें भजन, मैं कहाँ पे हूँ, मैंने क्या ऐसा कर दिया है। उन्होंने कहा जी यार आप हमारे पास अमानत हो, आपको किसी भी वक्त वो एजेंसी आएंगी वो आपको ले जाएंगी। मैं कहा किस मकसद के लिए मुझे ले जाएंगी, क्या किया मैंने कहा पैसा करे, मुझे मेरे घर वालों से कम से कम रब्ता कर रहे थे। अब मुझे ये नहीं बताया जा रहा कि आपको हमने पीटीआई में उठाया है। अच्छा, अभी तक नहीं बता। हाँ, अगर मुझे बता देते तो मैं उनको ये चीज़ें बताता कि भाई मेरे पास एविडेंस मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, मैं तो नून लीग का कारकुन हूँ। अच्छा। तो उन्होंने तकरीबन जब सुबह का टाइम हुआ तो उन्होंने मुझे वहाँ से जो है वो कहीं और शिफ्ट कर दिया। मुझे पता नहीं कहाँ पे ले गए, मुझे नहीं पता। उन्होंने ब्लैक मास्क चढ़ाया, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे गए, उन्होंने मुझे कहा जी आप पीटीआई छोड़ दें। मैंने कहा भाईजान मैं कुरान पाक पे हलफ रखने के लिए तैयार हूँ, मेरा पीटीआई से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, बयान लिया। तो वहाँ से फिर हमें उन्होंने थाना गुलबर्ग शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अननोन जगह से थाना गुलबर्ग ले आया? थाना गुलबर्ग ले आया। अच्छा। तो वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ पे उन्होंने हमें रखा। उसके बाद सुबह संडे था, उन्होंने फिर हमें एटीसी पेश किया गया। अच्छा। एटीसी पेश करने के बाद उन्होंने हमें रिमांड पे जेल भेज दिया, 14 रोज़ा रिमांड पे जेल भेज दिया। लेकिन घर वालों से मुलाकात कोई नहीं है, घर वालों को कोई पता नहीं है मैं कहाँ नहीं, क्योंकि ना किसी से बात करने दे रहे हैं, ना किसी से मुलाकात करने दे रहे हैं। मैंने कहा कम से कम मेरे घर वालों को इतला दे दें कि आपके बच्चे को हमने इस केस में उठाया है, कम से कम उनका कुछ ज़हन तो बन जाए कि पता लगे हमारा बच्चा है किधर। वालदा का तो बहुत बुरा हाल है। मेरी वालदा इतना परेशान, रो के बुरे हाल मैं आपको बता नहीं सकता। क्या कहती थी जब? मेरी वालदा इतना परेशान थी कि वो कहती मेरा बच्चा इस तरह का है ही नहीं है कि आपने किस मुकदमे में मेरे बच्चे को जो है उठाया गया है। मेरे वाला साहब थे, वो बड़ी टेंशन लेते थे, मेरे बहुत टेंशन लेते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे, उनकी हालत मैं बता नहीं सकता था कि जो उनके ऊपर बीती है कि उनके सामने, मेरे बच्चों के सामने मुझे पुलिस उठा के लेके गई है, कि मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ा होगा। खैर 14 रोज़ा डिमांड पे मुझे वहाँ पे रखा। उन्होंने झूठी शनाख्त परेडें वहाँ पे करवाई अपने बंदों से, और उन्होंने मेरे ऊपर। अच्छा, ये शनाख्त परेड सब लोगों की झूठी हुई? सब लोगों की वहाँ पे झूठी शनाख्त परेडें हुई हैं। उन्होंने उनके अपने बंदे थे, हमारी तस्वीरें उतार के वहाँ पर रखते गए कि जी ये बंदा फलां है। खैर बाद में पता चला कि इन्होंने मुझे कंटेनर में डाल दिया गया है। वहाँ पे कोई कंटेनर सड़ा था। मैं कुरान पाक पे हलफ रख के भी अभी भी कह सकता हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता कि कंटेनर जला कहाँ पे है। अच्छा। हल्फन कह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। अच्छा, कंटेनर को आग लगाने में के जुर्म में आपको अंदर डाल? मुझे उसमें डाल दिया गया। तो मैंने उनसे अर्ज़ की जो वहाँ पे बैठे थे जज साहब, जेल के अंदर ही हुआ हमारा। मैंने कहा जज साहब आप इस बंदे से पूछें जिसने मेरे ऊपर ये चीज़ें डाली हैं, उससे मुझे पूछें कि आप उसने मुझे वहाँ पे देखा है। तो उसने बाद में जब वहाँ से गुजरा उसने मुझे कहा मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देना, मैं मजबूर था, आपकी शनाख्त करनी थी मैंने।
तो क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मैंने उसको कहा, मैं कहा यार देखो आप मेरी ज़िंदगी, ये आपने मेरे ऊपर वो दब्बा लगाया है जो सारी ज़िंदगी यानी कब्र तक उसने मेरे साथ रहना है, इसने मेरी जान नहीं छोड़नी। कहता मेरी नौकरी का सवाल है। मैं कह रहा आप अपनी नौकरी सीधी करने के चक्करों में मेरा दब्बा लगा दिया। कहता 2 महीने के बाद आपकी ज़मानत हो जानी है। मैं कह यार वो तो अल्लाह के काम है, अल्लाह जाने, इंशाल्लाह अगर हमने नहीं किया तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। खैर वहाँ से फिर हमें जो है वो दोबारा ATC पेश, रिमांड के बाद ATC पेश किया जाता है। ATC वाले हमें जो है वो एक बंदी है उसको कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा गया कि ये बंदे सारी इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा। मैंने वहाँ भी अपनी सारी चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन टीम बिल्कुल ऐसी है। तो वहाँ पे मैंने उनको बताया जी, मैं कहा मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं हल्फन इस बात को जो है वो उस वक्त कोई भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि हालात ऐसे थे कोई भी जो है वो अपने ऊपर नहीं ले रहा था। मैं बड़ा परेशान, तो इतने मुश्किल हालात में वहाँ के जो मामलात थे मैं शायद आपको उस तरह मैं बयान भी नहीं कर सकता। खैर उसके बाद जब उन्होंने दोबारा हमें पेश किया, उन्होंने फिर ATC वालों ने हमें दोबारा फिर जेल भेज दिया गया। हमारी जो है वो ज़मानत हो गई, उसके बाद उन्होंने जेल भेज दिया गया। फिर जेल तकरीबन पूरा 2 अरसा रहा, पौने 2 माह रहा जेल में मैं। और लेकिन पौने 2 माह वो मेरे लिए ऐसे थे जैसे 2 साल हैं, क्योंकि जेल में जो है वो वक्त नहीं गुजरता। अच्छा, घर वालों से रब्ता हुआ? घर वालों से मेरा तकरीबन जब मैं 15 दिनों के बाद दोबारा ATC गया तब मेरा रब्ता हुआ था।